السلام علیکم. ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ. آج میں حاضر ہوں ایک ایسی لڑکی کی کہانی لے کر جو ونی میں لائی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بدل گئی تھی. امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئے گی. دوپہر کی تپتی دھوپ میں حویلی کے بڑے سے صحن کو عبور کر کے وہ برآمدے میں پہنچی تو اس نے سکھ کا سانس لیا. سامنے لمبی راہداری تھی. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی. یہاں کمروں کی طویل قطار سے آگے مردانہ حجرہ تھا. وہ شدید تذبذب میں تھی. اس نے باریک جارجٹ کی سفید قمیص پہن رکھی تھی جس پر ہلکا گلابی دوپٹہ بمشکل اس کے کندھوں سے سینے تک ٹکا ہوا تھا. اس نے 2-3 بار دوپٹہ سنبھالا پر وہ ٹھہر نہ پاتا اور ڈھلک جاتا. وہ ونی میں اپنا مقدر لے کر یہاں آئی تھی. آج پہلی بار حویلی کے کسی فرد نے اسے کام کا کہا تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے یہاں چلی آئی، لیکن اب پچھتا رہی تھی. وہ بھی راہداری تک ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے آتے زرغام آفریدی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. زرغام نے اسے تیز نظروں سے گھورا تو پلوشے کا خون ایک لمحے میں خشک ہو گیا. لمبا قد، چوڑے کندھے، گہری سانولی رنگت پر سخت تراشے ہوئے نقوش اور آنکھیں، وہ آنکھیں جن میں اس وقت آگ دہک رہی تھی، جو اسے مردانہ حجرے میں دیکھ کر سرخ ہونے لگی تھی. اوپر سے جارجٹ کی قمیض شلوار میں نظر آتا جسم دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا. وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا تو پلوشے نے فوری طور پر دوپٹے کا کونا اپنے ہونٹوں میں دبا لیا. یہ اس کی بچپن کی عادت تھی. جب وہ ڈر جاتی تھی یا گھبرا جاتی تو دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا لیتی. اس نے 2 قدم پیچھے ہٹنے چاہے پر پیٹھ دیوار سے جا لگی. راہ فرار مسدود ہو گئی. وہ گھبرا کر امداد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی. زرغام اسے 1 قدم کے فاصلے پر رک گیا. دبی آواز میں بولا، کیونکہ حجرے میں مہمان بیٹھے تھے چلانا ممکن نہیں تھا، پر اس دبی آواز میں جو غصہ تھا وہ چیخ سے بھی زیادہ خوفناک تھا. تم یہاں آخر کر کیا رہی ہو؟ پلوشے کے دل کی دھڑکن رک سی گئی. اس نے آنکھیں جھکا لی. دوپٹے کا کونا اس کے دانتوں میں تھا اور انگلیاں کپڑے کو مٹھی میں بھینچے ہوئے تھی. وہ مجھے اس لڑکی نے کہا حجرے میں جا کر دیکھو کتنے افراد ہیں. اس کی آواز اتنی آہستہ اور کانپتی ہوئی تھی کہ بمشکل وہ سن پایا. وہ کچھ دیر خاموش رہا. خاموشی پلوشے کو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگی. اچھا، اس لڑکی نے کہا اور تم چلی آئیں؟ وہ دانت پیس کر بولا. کیا اپنے گھر کے حجرے میں بھی مردوں کو گننے جاتی تھیں؟ پلوشے کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اس طرح سے بات کرے گا. اس نے تو صرف اس لڑکی کا کہنا مانا تھا. وہ ایک دم تڑپ کر بولی، استغفر اللہ، اگر میرے بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بہت ہی غصہ کرتے. زرغام نے زور سے سانس کھینچا. اس کی پیشانی پر بل گہرے ہو گئے. وہ غصہ کرتا ہوگا لیکن میں جان نکال لیتا ہوں. اس کی بات پر پلوشے کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی. اس نے پہلی بار زرغام کی آنکھوں میں جھانکا. وہ آنکھیں غصے سے سرخ تھی. اس نے سوچا اب بھاگ جانا چاہیے. اس نے جو ہی قدم اٹھایا زرغام نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ پلوشے کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اسے روتا دیکھ کر زرغام سٹ پٹا سا گیا. پہلی نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آدھا دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت یہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بے حیا لڑکی نہیں ہے، بس اپنی معصومیت میں ماری گئی ہے اور کسی نے جان پوچھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے مردانہ حجرے کی طرف بھیجا. اس کا دل ذرا سا نرم ہوا. سیدھی اندر جاؤ اور سنو. اس نے پھر آواز دبائی. اس بار اس میں پہلے جیسی چنگاری نہیں تھی لیکن سختی تھی. دوبارہ اس طرف قدم نہ پڑے، نہیں تو وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی. یہ کہہ کر اس نے بازو جھٹکے سے چھوڑا تو پلوشے کو لمحہ نہیں لگا. وہ پلٹی اور تقریباً دوڑتی ہوئی اندرونی صحن کی طرف بھاگتی ہی چلی گئی، مگر زرغام وہیں کھڑا رہا، اپنے مضبوط بازو کمر کے پیچھے باندھے. اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک سفید جارجٹ کی قمیض ہوا میں لہراتی غائب نہ ہو گئی. زرغام آفریدی نے آنکھیں بند کی تو وہ پھر سے اس کے خیالوں میں چھم سے آ گئی، جس کے ساتھ اس کا کل ہی نکاح ہوا تھا.
लेकिन इसमें कोई इसकी मर्जी शामिल नहीं थी। मगर अब वो उसकी निगाहों से जाकर भी इसके सामने मौजूद थी तो वो एकदम से गड़बड़ा गया। ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? वो बालों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाए गहरी सोच में डूब गया। रात का अंधेरा हवेली की ऊंची दीवारों पर उतरने लगा। आफरीदी खानदान का ये वक्त रात के खाने का था। हवेली का बड़ा हॉल इस वक्त एक अलग ही दुनिया लगता था। छत से लटकते हुए फानूस और जगह जगह रखे मिट्टी के दियों की रोशनी में पूरा कमरा सुनहरी रंग में नहाया हुआ था। फर्श पर बिछे गहरे सुर्ख और नीले कालीन पर लंबा सफ़ेद दस्तरख्वान बिछा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े थालों में भुना हुआ बकरा, खुशबूदार काबली पुलाव और कटे हुए फ्रूट्स रखे थे। हवेली के मर्द और औरतें बच्चों समेत यहाँ मौजूद थे और सब खामोशी से खाना खा रहे थे। पठानों के दस्तरख्वान पर वैसे भी शोर नहीं होता, बेअदबी नहीं होती। खाना इबादत की तरह खाया जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, खामोशी से, सुकून से। बुजुर्ग सबसे पहले बैठते हैं, जवान उनके बाद। कोई पहले हाथ नहीं डालता जब तक बड़े ना खाएं। ये रिवायत थी, तहजीब थी, ये आफरीदी घराने की पहचान थी। ज़रग़ाम आफरीदी दस्तरख्वान के सिरे पर बैठा था, खामोश, संजीदा। इतने में पलवशा झिझकते हुए हॉल में दाखिल हुई और ये मंजर देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उसने पानी का जग मजबूती से पकड़ रखा था। वो ज़रग़ाम की तरफ बढ़ी। आज पहली बार उसे कहा गया था कि दस्तरख्वान पर पानी और रोटी रखने का काम वो करेगी। उसके पाँव मन मन भर के हो रहे थे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़के जा रहा था। सुबह का वो वाक़या अभी तक इसके जहन में ताज़ा था। ज़रग़ाम की सुर्ख आंखें क्या याद आईं कि उसे पसीना आने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जग भारी था और हाथ कांप रहे थे। ज़रग़ाम के गिलास तक पहुंची, झुकी और पानी डालने लगी। घबराहट ऐसी थी कि उसके हाथ ज़रूरत से ज़्यादा कांप रहे थे। इतने में पानी गिलास से बाहर छलक गया और बाकी जग ज़रग़ाम के कपड़ों पर उलट गया। ज़रग़ाम तेज़ी से उठा। पलवशा के छक्के छूट गए। सबने खाने से हाथ रोक लिया। उन सब की आंखों में इसके लिए शदीद नापसंदीदगी उभरी। वो फौरी तौर पर पीछे हटी। दुपट्टे का कोना खुद ब खुद उसके होंठों में आ गया और चेहरा उसके पीछे छुप सा गया। बस बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में खौफ था। ज़रग़ाम गुस्से से बोलने ही वाला था कि अचानक एक तेज़ आवाज़ ने पूरे हॉल की खामोशी को चीर दिया। बीजान का जन्नाटेदार थप्पड़ पलवशे के गाल पर पड़ा था। पलवशे सन्नाटे में आ गई। उसका हाथ आहिस्ता से अपने गाल पर गया और वो थर थर कांपने लगी। गाल पर जलन थी, आंखों में आंसू थे, पर खौफ इतना ज़्यादा था कि आंसू भी जम से गए। बीजान की आंखों में नफ़रत की आग थी। वो ज़मीन पर थूक कर बोली, वनी में आई हमारे दुश्मन की बेटी को इतना भी सलीका नहीं कि खाना कैसे परोसते हैं। हॉल में सकता तारी था। तेरी माँ ने बस फैशन सिखाया है, दफ़ा हो जा, आइंदा इधर खाने के वक्त नज़र ना आना। फिर वो धाड़ी, रोशाने, एक छोटी सी लड़की सरपट भागते हुए आई। इसे ले जा, अलग थाली में खाना दे, इसके बर्तन घर के बर्तनों से अलग रखना। बीजा ने पलवशे को नखूत से देखा और हाथ से परे धकेला। चल जा, मर बाहर। पलवशे एक बार भी ना बोली। वो रोशाने के पीछे चली गई। उसके पांव भारी थे, गाल जल रहा था और सीने में कुछ टूट रहा था। ज़रग़ाम की निगाह उसकी पीठ पर थी, मगर उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। किचन में रोशाने ने एक छोटी सी थाली ली। एक रोटी और पानी वाली पतली दाल उसके सामने ज़मीन पर रख दी। पलवशी ने उस थाली को देखा। हॉल में से भुने हुए बकरे और पुलाव की खुशबू अभी भी आ रही थी। वो खुशबू जो दिल को ललचाती थी और रूह को तड़पाती थी, पर यहाँ बस ये पानी वाली दाल थी। पलवशी की आंखें भीग गई और जहन यकदम कहीं और चला गया। माँ की गोद, घर का छोटा सा आंगन, माँ का चेहरा। मुझे नहीं खानी ये सब्जी। क्यों भाई क्यों? नाशुक्री नहीं करते बेटा? मेरे हलक से नहीं उतरती दाल सब्जी, ये देखें। उसने गर्दन उठाकर गले पर हाथ रखा था और माँ हंसते हंसते लोट पोट हो गई थी। चलो, अल्लाह करे तू जो खाना चाहे वही मिले। माँ की वो दुआ याद आई कि वो हंसते हंसते रो पड़ी। अम्मी, आप क्यों मुझे छोड़ गई?
आंसू रोकते रोकते ना रुके तो वो चुपचाप रोने लगी। रात के इस पहर किचन के कोने में वो अकेली बैठी थी। सामने पानी वाली दाल और एक रोटी थी जो ठंडी होकर सख्त हो चुकी थी। वो नवाला तोड़ती थी, मुंह तक लाती थी, पर हलक से नीचे नहीं उतरता था। आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे और वो उन्हें साफ करने की जहमत भी नहीं कर रही थी। उसे पता ही ना चला कब से कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था। जहांगीर की आंखें शीशे की दीवार के पार उसके जॉर्जेट से झांकते दूधिया बदन पर जमी हुई थी। वो भूखी, बेशरम, गंदी निगाहें थी जिनमें इज्जत का शायबा तक नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आने लगा और तभी गला खंगारने की आवाज़ आई तो जहांगीर एकदम से उछल पड़ा। जरगाम आफरीदी दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसकी नज़र एक लम्हे के लिए झुकी हुई पलवशा पर पड़ी, फिर जहांगीर के चेहरे पर आकर टिक गई। जरगाम जहांगीर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे यहाँ इस वक्त देखकर वो शदीद बदमज़ा हुआ। जहांगीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहांगीर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो कुछ नहीं, मुझे पानी चाहिए था। दस्तरख्वान पर पानी, खाना सब मौजूद है। वो मैं ज़रा लेट हो गया था, इसीलिए सबके साथ शरीक नहीं हुआ। जरगाम की आंखों में सट चमक आई। तो अब चले जाओ। इस सपाट लहजे में जो वज़न था जो किसी तूफान से कम नहीं था। जहांगीर का रंग मज़ीद उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं उधर ही जा रहा था। जाते जाते उसकी नज़र चोरी चोरी एक बार फिर पलवशा की तरफ उठी और वो तेज़ी से वहाँ से जाने लगा। पलवशा, जो उनकी गुफ्तगू से अचानक चौंक गई थी, हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। हस्बे आदत दुपट्टे का कोना खुद ब खुद होंठों में आ गया। आधा चेहरा उसके पीछे छुप गया और खौफजदा आंखें जरगाम की तरफ उठी। जरगाम ने जहांगीर को जाते हुए देखा, फिर यकदम तेज़ी से पलवशा की तरफ आया और उसका बाजू सख्ती से दबोच लिया। ये क्या पहन रखा है? पलवशा ने हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखा तो जरगाम ने बाजू पर गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। हम पठान लोग हैं। हमारे कबीले में लड़कियां ऐसा फैशन नहीं करती कि मर्दों की निगाहें झुक जाएं। हमारी तो बड़ी उम्र की औरतें भी, जिन्हें काफ़ी इख्तियारात हासिल होते हैं, ऐसा लिबास नहीं पहनती। तुमने हमारे दरमियान रहकर ये बगावत क्यों की? पलवशा की आंखें पानियों से भर गई। चेहरा खौफ से जर्द हो गया। मुझे ये कपड़े उस लड़की ने दिए हैं। किस लड़की ने? जिसकी सब्ज आंखें हैं। जरगाम के जबड़े फिर सख्त हुए। तुम्हें पहले भी कहा था कि वो सब्ज आंखों वाली लड़की मेरी छोटी बहन है। उसका नाम गुलमीने है। हाँ वही, उसी ने मुझे कहा था कि ये पहनो। उसने कहा और तुमने पहन लिया। क्या तुम्हारे घर में भी इसी तरह के कपड़े पहनकर औरतें फिरती हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा बदन मर्दों को दावत दे रहा होता है? अल्लाह तौबा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। वो बौखला कर बोली। तो फिर क्या सोचकर ये कपड़े पहन लिए? वो गुलमीने ने दिए थे। मैंने सोचा। अच्छा, कल गुलमीने के कहेगी कि छत से छलांग लगा दो, तो क्या लगा दोगी? पलवशा ने रहम तलब निगाहों से उसे देखा। आंखें आंसुओं से लबरेज थी, होंठ कांप रहे थे, पर वो कुछ बोल ना सकी। जरगाम ने एक झटके से उसका बाजू खींचा और वो किसी कटी पतंग की तरह उसके चौड़े सीने से आग लगी। एक लम्हे के लिए दोनों जम गए। पलवशे की सांस रुक गई और जरगाम जिंदगी में पहली बार यूं किसी लड़की को सीने से लगाए खड़ा था। वो एकदम परेशान हो गया। पलवशा के गाल उसके सीने से लगे थे और वो महसूस कर सकती थी कि जरगाम का दिल थोड़ी तेज़ी से धड़क रहा था, बिल्कुल उसके अपने दिल की तरह। जरगाम बुरी तरह से सटपटाया और पीछे हटकर अपनी शर्मिंदगी दबाकर बोला, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इतने बारीक कपड़ों में देखा, अगर तुम्हारे बदन का कोई हिस्सा भी मुझे दिखाई दिया, तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं होगी। फिर उसका बाजू पकड़े वो उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले आया। अलमारी खोली, अंदर टंगे कपड़ों में से एक बड़ी सी फूलदार फ्रॉक निकाली और इसकी तरफ फेंक दी। फटाफट ये वाहियात कपड़े उतारो और ये पहनो। हमारे यहाँ ख़वातीन फ्रॉक पहनती हैं, बारीक कमीज शलवार नहीं, समझी? पलवशा ने चुपचाप सर हिला दिया। जरगाम ने एक आखिरी सर्द निगाह से उसे घूरा, फिर पास से गुजर कर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ। पलवशा वहाँ अकेली खड़ी थी।
फ्रॉक हाथ में थी, आंखों में आंसू थे और सीने में अजीब सी कशमकश थी। वो जानती थी कि वो कबीले का सख्त तरीन मर्द है जिसके निकाह में वो आई थी। वो इससे नफरत भी करती थी, डरती भी थी, मगर उसके अलावा भी कुछ था जो समझ से बाहर था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था। बस कहीं दूर कोई झींगर बोल रहा था और हवा कभी कभी खिड़की के पर्दे लहरा देती। ऐसे में ज़रग़ाम आफरीदी कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहीं रुक गया। पलवशा अपनी सादगी में उसके बिस्तर पर बैठी थी, बेखबर, थकी हुई, फूलदार फ्रॉक में मलबूस, दुपट्टा कंधों पर ढलका हुआ, बाल हल्के से बिखरे हुए। वो शायद बैठे बैठे ऊँग रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कमरे में ज़रग़ाम आ चुका है। वो हल्का सा खंगारा, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? मोरे ने तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं बताई? पलवशा चौंक कर एकदम से जागी। आंखें खुली तो सामने ज़रग़ाम खड़ा था और उसके चेहरे पर वही सख्ती और नाराज़गी थी। वो फौरी तौर पर उठकर खड़ी हो गई। मोरे कौन? मेरी अम्मी, जिन्हें हवेली में बीजान कहते हैं। पलवशे ने एक लम्हे के लिए होंठ भींचे। नहीं तो, वो तो मुझे देखती ही नहीं, बात क्या करेंगी? उसकी ज़बान फिसल गई। जो बात उसे अंदर ही रखनी थी वो बाहर आ गई, वो भी उनके बेटे के सामने। पलवशा ने फौरी तौर पर नज़रें झुका ली और दुपट्टे का कोना होंठों में दबा लिया। ज़रग़ाम ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। इससे पहले कि वो उस पर रहम खाता, वो एकदम तेज़ आवाज़ में बोला, नीचे बिस्तर बिछाओ अपना, और मेरे बिस्तर से कोसों दूर रहना। दुश्मनी ख़त्म हुई है हमारी, पर मेरे दिल से तुम और तुम्हारे ख़ानदान के लिए नफ़रत नहीं गई। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि निकाह होने का मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है। हर लफ्ज़ एक पत्थर की तरह पलवशे के सीने पर गिरा। वो कुछ ना बोली, नम आंखों से उठी और बिस्तर बिछाने लगी। ज़रग़ाम बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी रही। वो किसी गठड़ी की तरह लेट चुकी थी। तभी वो बोला, पाँव दबाने आते हैं? पलवशा ने ऊपर देखा। ज़रग़ाम की निगाह दूसरी तरफ थी, लहजा वही सपाट सा। उसने सर हिलाया और उठकर बेड की तरफ आने लगी, पर पाँव जैसे भारी हो गए। उसके कदम संभल ही नहीं पाए। वो लड़खड़ाई और सीधी ज़रग़ाम के सीने पर जा गिरी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। पलवशा की सांस रुक गई। उसका चेहरा ज़रग़ाम के सीने से लगा था और उसकी उंगलियां उसकी कमीज़ के कपड़े को खुद ब खुद मुट्ठी में भेंट चुकी थीं। घबराहट में, बेख्तियारी में उसके मुंह से चीख सी निकल गई। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। ज़रग़ाम की आंखों में पहले सुर्खी आई, फिर चेहरे का रंग बदला। वो सख्त लहजे में बोलने ही लगा था कि इसकी कपकपाहट देखकर खामोश हो गया। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ज़रग़ाम आफरीदी ने एक लंबा सांस लिया, फिर आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे अलग किया। पलवशा ने आंखें खोली। ज़रग़ाम की आंखों में इस बार वो सुर्खी नहीं थी, कुछ और था जिसे वो पहचान नहीं पाई। जाओ, सो जाओ, वो नरमी से बोला और करवट मोड़कर लेट गया। न जाने इस लड़की की मासूमियत में क्या सहर है कि गुस्सा भूल जाता हूँ मैं, वो सोचने लगा। जबकि वो तेज़ी से उठी और फर्श पर बिछे बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो करवट पर करवट लेने लगी। उसकी आंखें बंद थी, मगर जहन मुसलसल चल रहा था। उसे वो सीना याद आया, वो मजबूत, गरम, चौड़ा सीना, जिससे लगकर एक लम्हे के लिए उसे लगा था कि शायद दुनिया में कोई जगह है जहां वो महफूज है। फिर उसने अपने आप को झड़का। ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता। ये वही शख्स है जिसकी माँ ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। लेकिन वो आंखें और उसके सीने में धड़कता दिल, इस ख्याल से ही उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी। चांद की रोशनी फर्श पर फैली हुई थी। बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया। पलवशा करवट बदलती रही और आखिर उठकर बैठ गई। घुटनों को सीने से लगाया और उन पर सर रख दिया। चूड़ियों की छन छन से बेड पर लेटते ज़रग़ाम ने आंख खोलकर उसकी तरफ देखा। क्या मसला है तुम्हारा? पलवशा इस अचानक आवाज़ से चौंकी और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही हो? और उतारो ये चूड़ियाँ,
कब से शोर मचा रही हैं। पलवशा ने नजरें अपनी कलाइयों पर डाली। सुर्ख और सुनहरी चूड़ियां जो माँ ने उसके लिए खरीदी थी और कहा था संभाल कर रखना। उसने वन्नी की खबर सुनने के बाद माँ की निशानी पहन ली थी, जिससे इसे लगा कि वो इसके साथ है, वो अकेली नहीं है। लेकिन अब इन्हें उतारना उसे कयामत लग रहा था। उसने एक लम्हे के लिए चूड़ियों को हसरत से देखा और फिर एक एक करके उतारने लगी। हर चूड़ी उतरते वक्त महसूस होता जैसे माँ का हाथ कलाई से हट रहा हो। उसने सब चूड़ियाँ तकिए के पास रख दी और खामोशी से बैठी रही। थोड़ी देर गुजरी कि जरगाम ने उससे पूछा, तुम पायल भी पहनती हो? हाँ। उसे भी उतारो। वो मचल कर बोली, मगर क्या? पलवशा ने आंखें झुकाई। ये मेरी अम्मा ने दी थी, ये उनकी निशानी है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे जेवरात के बाजे मुझे सोने नहीं दे रहे। पलवशा ने कुछ नहीं कहा। कपकपाती उंगलियों से पायल उतारी और फिर उसे उतारते ही अपने सीने से लगा लिया। आंखें बंद कर ली। ठंडी धात सीने से लगी थी, पर उसमें माँ की गरमाइश महसूस होती थी। जरगाम ने उसे गौर से देखा, फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने ज़रा सी आँख खोली तो देखा पलवशा अभी भी वैसे ही सीने से पायल लगाए बैठी थी। वो झुंझला कर उठकर बैठ गया। अब क्या मसला है तुम्हारा? पलवशा ने सर उठाकर उसे देखा। अब तो मेरा कोई जेवर नहीं बजा। बड़ी मेहरबानी आपकी जो अभी जेवर नहीं बजाए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम सो क्यों नहीं रही? मैं कभी नीचे नहीं सोई। ओ अच्छा, महारानी को नीचे नींद नहीं आ रही? पलवशा ने होंठ भींच लिए, फिर आहिस्ता से बोली, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सामने वाले सोफे पर सो जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाओ, सो जाओ, मैंने कब मना किया है। वो एकदम उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। पायल अभी भी मुट्ठी में बंद थी। उसने मुट्ठी और मजबूत कर ली। जरगाम ने करवट मोड़ी तो नज़र पड़ी। बंद मुट्ठी से पायल का एक हिस्सा चांद की रोशनी में हल्का सा चमकता हुआ बाहर झांक रहा था। तुम्हें ये पायल बहुत अच्छी लगती है? उसने आम से लहजे में पूछा। पलवशा ने बस सर हिलाया। जरगाम करवट मोड़कर लेट गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन पलवशा की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। वो सोफे की पुश्त को तकती रही और जहन रह रहकर पीछे चला जाता। उस रास्ते पर जहाँ दर्द था, यादें थी और एक घर था जो अब घर नहीं रहा था। माँ की कब्र पर अभी घास भी नहीं उगी थी कि बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाबा गुलशेर खान जो कभी इसकी दुनिया थे, उन्होंने दूसरी शादी एक जवान लड़की से की और फिर उसकी चाहत में वो सब कुछ भूल गए। पलवशे को याद था कि पहले उसका बाप कैसा था, कितनी मोहब्बत थी, कैसे वो इसे कंधे पर बिठाता था, पर सौतेली माँ के आते ही वो इसकी तरफ देखता भी नहीं था। फिर वो दिन याद आया जब सौतेले भाई के हाथों आफरीदी कबीले का एक आदमी मारा गया। सौतेली माँ ने घर सर पर उठा लिया, रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि अब हम सब ख़त्म हो जाएंगे, आफरीदी छोड़ेंगे नहीं, कोई रास्ता निकालो। और जब वन्नी का मुतालबा आया तो वो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। उसके बाबा को मनाने में ऐसे देर नहीं लगी और इसके बाबा ने अपनी बेटी को, अपनी मरहूम बीवी की निशानी को वन्नी में दे दिया। उसका निकाह ज़बरदस्ती जरगाम से हुआ और फिर बाप ने पलटकर इसे पूछा तक नहीं कि वो किस हाल में है। अगर माँ होती तो ये कभी ना होता। माँ शेरनी की तरह सामने खड़ी हो जाती, सारी दुनिया से लड़ लेती, पर अपनी बेटी को वन्नी में ना देती। इस ख्याल से ही पलवशे की आंखें भीग गईं। मुट्ठी में बंद पायल को उसने और मजबूती से थामा। आंसू खामोशी से बहते रहे। कमरे में जरगाम के सांसों की आवाज़ आने लगी। शायद वो सो गया था। पलवशा ने आंखें बंद की तो माँ का चेहरा निगाहों में घूम गया। सुबह की अजान के साथ हवेली जाग उठी, पर पलवशा के लिए सुबह किसी अच्छी उम्मीद की सुबह नहीं थी। वो बस यहाँ सांस ले रही थी और किसी न किसी तरह जिंदा थी। बीजान की आवाज़ सहन में गूंजी, पलवशा। वो दुपट्टा संभालती दौड़ती हुई बाहर निकली। बीजान ने उसे सर से पैर तक देखा, जैसे किसी चीज़ को परखा जाता है, फिर उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। हमारे घर में किसी को भी बेकार बैठने की आदत नहीं और दुश्मनों की औलाद को तो बिल्कुल भी सुकून से बैठने नहीं देते।
फिर उसे बालों से पकड़कर बावर्ची खाने में धकेला, जहां बर्तनों का ढेर था जो रात के खाने से जमा हुआ था। हवेली का पूरा फर्श झाड़ू मांगता था। सहन में कपड़ों की तोड़ियां पड़ी थी, और ये सब एक अकेली लड़की के लिए था, जिसके हाथ नर्म और मुलायम थे, जिसने कभी इतना काम नहीं किया था। पलवशा ने चुपचाप बर्तन उठाए और धोने शुरू कर दिए। घंटों काम किया, हाथ सुर्ख हो गए, कमर दर्द करने लगी, अधमोई हो गई, पर रुकी नहीं, क्योंकि रुकने की इजाज़त नहीं थी। दोपहर को थकी हारी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि उसे सामान उलटने पलटने की आवाज़ आई। गुलमीने इसके कमरे में थी। पलवशा दरवाजे में रुक गई। इसका जहेज का संदूक उल्टा पड़ा था और गुलमीने सामान को हाथ लगा लगा कर देख रही थी। होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। ये सब काड़ कबाड़ हमारे घर लाई हो, इसे उठाकर बाहर गली में फेंको। उसने पलवशे का सारा सामान बक्से से निकालकर ज़मीन पर दे मारा। पलवशे खामोश रही। उसने अंदर आकर चुपचाप सामान समेटना शुरू किया, और तभी गुलमीने की नज़र उसकी पायल पर पड़ी, जो इसकी माँ की आखिरी निशानी थी। गुलमीने ने हाथ बढ़ाया। ये दो मुझे। पलवशे का दिल डूब गया। ये मेरी अम्मी की निशानी है, ये नहीं दे सकती। बाकी सब ले लो, मगर ये मुझसे ना लो। वो गिड़गिड़ाई। मैंने कहा दो। गुलमीने बीबी, अल्लाह का वास्ता, ये मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है, इसे मुझसे जुदा मत करो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। उसकी आंखें भर आईं, आवाज़ कांपी, हाथ जुड़ गए। पलवशा ने मिन्नत की, वास्ते दिए, पर गुलमीने के चेहरे पर रहम का एक ज़रा भी नहीं आया। उसने पलवशा के हाथ से पायल छीनी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। पलवशा वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगला दिन सुबह उठते ही उसे परेशान कर गया। हवेली में हंगामा बरपा था। पूरे 2 तोले का सोने का हार गुम था। गुलमीने की चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो जूं ही बाहर निकली तो गुलमीना ने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, यही है वो चोर, हमारे दुश्मन की बेटी, हमारी आस्तीन का सांप निकली, इसी ने मेरा 2 तोले सोने का हार चुराया है। पलवशा इस इल्ज़ाम पर सहम गई और इमदाद तलब नज़रों से सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन पूरी हवेली की निगाहें उस पर जमी थी, और उन निगाहों में इसके लिए शदीद नफरत थी। बीजान ने एक कदम आगे बढ़ाया। पलवशा ने देखा, हवेली के मर्द और औरतें सब उसे घूर रहे थे। सब ने फैसला कर लिया था, वो दुश्मन की बेटी थी, वनी में आई थी। चोर होना इसके लिए फितरी लगता था उन्हें। ज़रग़ाम भी शोर सुनकर दरवाजे में आ खड़ा हो गया। पलवशा की नज़र उस पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा शायद वो इस पर यकीन करेगा, लेकिन ज़रग़ाम सबको बगौर देख रहा था, पर खामोश था। यहाँ तक कि बीजान ने इसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन ज़रग़ाम उसे बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि चुपचाप इसे पिटता हुआ देखता चला गया। और फिर जब बीजान के कहने पर उसे घसीटते हुए हवेली के स्टोर रूम में बंद किया गया, तो वो ज़ख्मों से चूर थी। स्टोर रूम में अंधेरा था, सीलन थी, पुराने सामान की बू थी। उसे कमरे में धक्का देकर बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया गया। वो यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी थी। वो इतना रो चुकी थी कि उसके आंसू भी खुश्क हो गए। उसे सबसे ज़्यादा ज़रग़ाम की खामोशी पर अफसोस हो रहा था। गोया वो जो इसके बारे में अच्छा गुमान अपने दिल में पैदा कर रही थी, वो सब नज़र का धोखा था। वो भी इन्हीं जैसा था, और इस बात पर उसका दिल ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। उसी रात ज़रग़ाम गुलमीने के कमरे में दाखिल हुआ। गुलमीने मेज़ के सामने बैठी थी। ज़रग़ाम को देखा तो मुस्कुराई। ज़रग़ाम ने एक कदम अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और गुलमीने के गले पर हाथ रखकर जारहाना अंदाज में बोला, कहाँ है वो ज़ेवर? जल्दी निकाल कर लाओ, वरना यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। गुलमीने इतनी डर गई कि फ़ौरन बोली, बिस्तर की चादर के नीचे रखे हैं। ज़रग़ाम ने वो ज़ेवर निकाले तो गुलमीने का रंग उड़ गया। उसने ज़ेवर मेज़ पर रखे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगली बार ऐसा हुआ तो मेरा गुस्सा याद है ना? गुलमीने थर थर कांपने लगी। ज़रग़ाम पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। राहदारी में कदम रुके। स्टोर का बंद दरवाज़ा सामने था, ताला लटका हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई सिसकी नहीं, कोई दस्तक नहीं, बस खामोशी थी। ज़रग़ाम ने एक लंबा सांस लिया
जबड़ा भेंचा और अपने कमरे में आ गया, मगर दिल बेकरार सा हो गया। तकरीबन आधी रात का वक्त था। बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू थी। बार बार बिजली कड़कती और बादल गरजते। लेकिन फिर जब लाइट चली गई तो ज़रग़ाम चौंक सा गया। वो बेड पर लेटा हुआ था। एकदम उठकर बैठ गया। उसके जहन में पहला ख्याल पलवशे का आया। वो तो बहुत डरपोक है। ये ख्याल आते ही वो बेड से उठा, टॉर्च उठाई और कमरे से फ़ौरन निकला। राहदारी में तेज़ हवा चल रही थी। ज़रग़ाम तेज़ कदमों से हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, जहाँ स्टोर रूम था। दरवाजे के पास पहुँचा तो रुक गया। अंदर से सिसकियों में डूबी आवाज़ आ रही थी। ज़रग़ाम ने तेज़ी से ताला खोला और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो दीवार के साथ घुटनों पर सर रखे बैठी थी। उसका रंग एक ही रात में कुम्हला गया था, जैसे किसी ने उसके चेहरे से सारी गुलाबी रंगत चुरा ली हो। ज़रग़ाम अंदर आया तो वो चौंकी और मज़ीद सहम गई। वो दीवार से और लग गई, हाथ ऐसे आगे किए जैसे खुद को आखिरी बार बचाने की कोशिश कर रही हो। डरो नहीं, ये मैं हूँ। ज़रग़ाम की आवाज़ मामूल से ज़्यादा नरम थी। पलवशा ने टॉर्च की रोशनी में ज़रग़ाम का चेहरा देखा और फिर सांस रोके उसे देखती रही। ज़रग़ाम ने मोमबत्ती जलाई। नारंगी रोशनी में पलवशा का चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी, होंठ कांप रहे थे। ज़रग़ाम ने गौर से जब उसे देखा तो वो एकदम बोली, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ज़रग़ाम ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो आंखें जिनमें हमेशा तूफ़ान होता था इस वक्त खामोश थी। उसने बग़ैर कुछ कहे निगाह झुका ली तो पलवशे का दिल डूबने लगा। ये भी मुझे चोर समझता है, उसने दिल में सोचा। उसकी आंखें फिर से भीग गईं, इस बार बड़ी बेबसी से, क्योंकि उसकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। तुम क्यों रो रही हो? ज़रग़ाम ने सर उठाकर उसे देखा। क्योंकि आप भी मुझे चोर समझते हो। ऐसी कोई बात नहीं। पलवशा ने ममनूनियत भरी आंखों से उसे देखा। क्या वाकई आप मुझे चोर नहीं समझते? नहीं, तुम चोर नहीं हो। पलवशा रोते रोते मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट मोम की बत्ती की रोशनी में ऐसे थी जैसे बारिश में कोई फूल खिल जाए। ज़रग़ाम उसे बेख्तियार देखता चला गया। शुक्र है, कोई तो मुझ पर यकीन करता है। ज़रग़ाम का हाथ जेब की तरफ गया और फिर अपनी हथेली पलवशा के सामने कर दी। पाजेब देखकर पलवशा चौंकी। एक दबा दबा जोश उसके चेहरे पर आया। होंठ कांपे, सांस रुक सी गई। ये तो मेरी पाजेब है, वो हिचकिचाते हुए बोली, जैसे यकीन ना आ रहा हो। ज़रग़ाम ने सर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारी है, ले लो। मगर वो गुलमीने, वो मुझ पर बहुत खफा होगी और फिर मोरे को भी मुझे मारने का बहाना मिल जाएगा। वो दर्द से कुरलाई तो ज़रग़ाम ने उसे तेज़ नज़रों से देखा। वो अब कभी भी तुमसे ये पाजेब नहीं लेगी, और अगर किसी ने लेने की कोशिश की तो मैं देख लूँगा। पलवशा ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई। वो उंगलियां जो कपकपा रही थीं ज़रग़ाम से छुप ना सकी। तभी ज़रग़ाम ने उसका पाँव पकड़ा। पलवशे बौखला गई, एकदम से सांस ऊपर को चढ़ गई, मगर ज़रग़ाम रुका नहीं और उसका पाँव अपनी तरफ खींचा। मोमबत्ती की नारंगी रोशनी में, बारिश की बूंदों में उसने आहिस्ता से पाजेब पलवशा के पैरों में पहनानी शुरू की। पलवशा का दिल सीने से निकलकर बाहर आने को बेताब था। वो बस देखती रही। दो मजबूत हाथ उसका पाँव थामे हुए थे। वो उंगलियां जो इतनी एहतियात से पाजेब बांध रही थी जैसे उसका पैर इंतहाई कीमती हो। ज़रग़ाम ने पाँव से अपनी उंगलियां हटाईं तो पलवशा अपने आप में सिमटने लगी। वो शर्म के मारे दोहरी हो रही थी। वो चाह कर भी निगाह उठाकर ज़रग़ाम की तरफ ना देख सकी। बाहर बारिश बरसती रही, मोमबत्ती की लौ थरथराती रही, और इस छोटे से नीम मलगजे से स्टोर में उन दोनों के दरमियान कुछ बदला था, जिसे ना वो समझ पाई और ना वो समझना चाहता था। अगला दिन दोपहर का सूरज हवेली की दीवारों पर तिरछा पड़ रहा था। परिंदे भी दुबके हुए थे। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। गर्मी के इस पहर में हवेली के ज़्यादातर अफराद अपने कमरों में आराम कर रहे थे।
बस वन्नी में आई पलवशा थी जो सहन के एक कोने में बैठी गंदुम के दाने साफ कर रही थी। हाथ मुसलसल काम कर रहे थे, आंखें दानों से कूड़ा करकट निकाल रही थी, पर उसका दिल किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। कल रात की बारिश याद आ रही थी और वो नरम सा एहसास भरा लम्हा और वो हाथ जिन्होंने पाजेब पहनाई थी। वो अपने आप में मुस्कुराने लगी। उसे पता ही ना चला वो कब ज़रग़ाम जैसे सख्त दिल मर्द के करीब होती चली गई कि तन्हाई में बैठकर उसे सोचना अच्छा लगने लगा। पलवशा, उसके करीब किसी ने उसे पुकारा तो वो चौंकी। जहांगीर उसके करीब खड़ा था। वो एकदम अपने ख़यालात से चौंकी। उसने अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया। जी, क्या काम है? पलवशा ने सपाट लहजे में पूछा। मुझे भला तुमसे क्या काम होना? वो अजीब चुपती हुई नज़रों से इसे देखकर बोला। बस यूं ही आया था, सोचा हाल पूछ लूं। सुनाओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, वो मुख्तसर बोली। वाकई? उसने हल्के से हंसने की कोशिश की। इस हवेली में ठीक रहना आसान नहीं होता पलवशा बीबी। मैं सब जानता हूँ, क्या होता है यहाँ और क्या नहीं होता। बीजान का रवैया, गुलमीने की हरकतें, वो स्टोर रूम की कैदे तन्हाई। जाने क्यों मुझे तुम पर तरस आता है। अपनी खूबसूरती तुम इस हवेली पर ज़ाया कर दोगी, इसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। पलवशा के हाथ रुक गए। आप कहना क्या चाहते हैं? जहांगीर ने एक गिर नज़र दौड़ाई, फिर और करीब आया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपने दिल की हर बात मुझे बता सकती हो। देखो, मैं अभी भी तुम्हारे फ़ायदे की बात लेकर आया हूँ। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे पगली, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और इस हवेली से जितना दूर जल्दी जा सकती हो चली जाओ। काहे? इस हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में अपनी जवानी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे बाप के घर तक पहुँचाने का इंतज़ाम हो सकता है। वो रुका क्योंकि पलवशा एकदम खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वो एकदम तड़क कर बोली, अब तो मुझे यहाँ से जाने का ऐसे मशवरा दे रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर भाग कर आई हूँ। हालांकि ये बात सारी दुनिया जानती है कि मैं भाग कर नहीं बल्कि निकाह करके लाई गई हूँ। लिहाजा बराए मेहरबानी आप अपने मशवरे अपने पास रखें। देखो लड़की, तुम अभी बहुत कम सिन हो। तुम इस वक्त बहुत जज्बाती होकर बातें कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम अपने बाप से खफा हो। अगर तुम अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे रहने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। तुम हामी तो भरो। जहांगीर उसे समझाने लगा, मगर वो सुनी अनसुनी करते हुए एकदम बोली, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जहांगीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो हर बात पर सहम जाती थी। तभी वो जिद होकर बोला, कौन हो तुम? पलवशे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ज़रग़ाम आफरीदी की बीवी हूँ। एक लम्हे के लिए जहांगीर पर सत्ता तारी हो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की ज़रग़ाम की साइड लेगी, जिसने कभी भी उसके साथ ढंग से बात नहीं की। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तो वो एकदम हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोकते हुए बोली, तुम्हें मेरा खैर ख्वाह बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा निकाह गुलमीने से हो चुका है तो तुम्हें उसकी खैर ख्वाही का तालिब ज़्यादा होना चाहिए, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम दूसरों की बीवियों को वरगलाते फिरो। अपने काम से काम रखो, समझे? वरना मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। जहांगीर के पूरे जिस्म में जैसे चूंटियां दौड़ गई। उसका रंग उड़ गया और आंखें फैल गई। इस धान पान सी लड़की ने, जिसे वो बेसहारा और बेबस समझता था, जिस पर उसने हमदर्दी का जाल फेंका था, वो उसे उसी तरह से जवाब देगी, ये उसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। उसे शदीद गुस्सा आया, पर वो कुछ बोल ना सका और उसे सख्त गुस्सीली नज़रों से देखने लगा। सहन के एक तरफ हवेली की खिड़की थी और उस खिड़की के पास ज़रग़ाम आफरीदी खड़ा था। उसने सब सुना था और उसके होंठों पर एक चुलबुली सी मुस्कुराहट फैल गई थी। अचानक जहांगीर की नज़र खिड़की पर पड़ी।
तो उसका रंग मजीद उड़ गया और वो बगैर कुछ कहे तेजी से पलटा और सहन से निकल गया। पलवशा ने उसे तेजी से भागते हुए देखा तो शदीद हैरत हुई। वो सोचने लगी, इसे क्या हुआ, ये इतना खौफजदा होकर क्यों भाग रहा है। फिर वो कंधे उचकाकर दोबारा फर्श पर बैठ गई और गंदम की सफाई की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसे खिड़की में खड़े ज़रगाम का पता नहीं था। फिर ज़रगाम वहाँ अब भी खड़ा रहा। वो बदस्तूर पलवशा को देख रहा था कि इतनी सख्तियाँ, इतनी तकलीफ़ें, बीजान का रवैया, गुलमीने की साजिशें देखने के बावजूद जब कोई वरगलाने वाला आया तो उसने कहा, मैं ज़रगाम आफरीदी की बीवी हूँ। तो उसकी इस जुमले पर ज़रगाम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़रगाम को लगा था कि वो यहाँ तंग है, कभी भी भाग सकती है, इसलिए उस पर कड़ा पहरा रखा गया था, क्योंकि सब सोचते थे कि वो मौका मिलते ही भाग जाएगी। दुश्मन की बेटी है, बनी में आई है, यहाँ उसका दिल कहाँ लगेगा। पर आज उसने जो सुना उसने उसकी सारी बदगुमानी दूर कर दी। ज़रगाम के जहन में एक ख्याल जो पहले उसे कभी नहीं आया था मगर अब उस पर तारी होता जा रहा था, और वो ख्याल मोहब्बत का था। एक ऐसी लड़की से मोहब्बत का जो जुमा 8 दिन उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी और अब धीरे धीरे उसके हवासों पर छाती जा रही थी। इस मोहब्बत का असर उस पर इतना तारी था कि वो हवेली में उसे बहाने बहाने से देखने के लिए चला आता, और ये इस बात का सबूत था कि भरी दोपहर में जहाँ उसकी आदत हमेशा आराम करने की होती थी, वो अपना आराम छोड़कर इस वक्त खिड़की में चुपके चुपके पलवशा को देखने आया था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि आज उस मासूम लड़की के दिल के जज्बात इस पर अया हो जाएंगे। वो मोहब्बत जिसके बारे में वो खुद भी कभी नहीं सोचता था, इस लफ्ज़ से उसे उलझन होती थी। वो जज्बात को कमज़ोरी समझता था, मगर आज बहुत कुछ ऐसा था जो वो इनकार नहीं कर पा रहा था। वो लड़की जो उसके घर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में थी, वो इसके नाम के साथ खुश थी, ज़रगाम आफरीदी के नाम के साथ। उसका दिल चाहा वो उड़कर इस लड़की के पास जाए और उसे अपने गले से लगाकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर ले। उसकी सांसें तेज़ हुईं। उसने खिड़की से हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि अब इस लड़की को पहरे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मोहब्बत के हिसार में थी, उस मोहब्बत के जो अभी अनदेखी है, अनकही है, मगर अपना मुकम्मल वजूद महसूस करवा रही है। ज़रगाम पलवशे के नाम को किसी गीत की तरह गुनगुनाने लगा। फिर उसने एक लंबा सांस लिया और आंखें बंद कर ली। पलवशा गंदम के दाने साफ करने के बाद अपने कमरे में चली आई ताकि थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर ले। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला और जम गई। परी, इसके घर की नौकरानी, जो बचपन से इसके साथ थी, जो माँ के जाने के बाद भी साए की तरह साथ रही थी, वो अब इसके सामने खड़ी थी। इतने अरसे बाद उसके मायके से कोई आया था। वो एकदम जज्बाती हो गई। पलवशा ने एक लम्हा भी नहीं लगाया और उसके गले लग गई। वो रोना नहीं चाहती थी पर आंसू रुके नहीं। 2.5 महीने का बोझ एक साथ निकल आया। सिसकियाँ थी, खुशी थी, दर्द था, सब एक साथ गड़मड़ हो गए। परी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें देखने आई हूँ छोटी मालकन। पलवशा ने आंखें साफ की। सब कैसे हैं? बाबा और वो, उनकी बीवी? सब ठीक हैं। परी ने एक लम्हे के लिए नजरें चुराई। वो दोनों तुम्हें लेने के लिए आए हैं। पलवशा की आंखों में एकदम रोशनी आ गई। उम्मीद के जुगनू चमके, दिल जोर से धड़का। बाबा आए हैं? मुझे लेने आए हैं? शायद उन्हें याद आ गई अपनी बेटी की। वो उठने लगी। परी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पलवशा ने उसकी तरफ देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रही थी। उसके चेहरे पर बुरा सा तासुर था। वो ठुठक कर बैठ गई। क्यों नहीं जाने दे रही? परी ने एक गहरा सांस लिया। छोटी मालकन, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मी के नाम बहुत बड़ी ज़मीन है। हाँ, वो ज़मीन तुम्हारे नाम है। शेर लाला और छोटी मालकन उसे तुमसे लेकर बेचना चाहते हैं। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे शेर लाला की दूसरी बीवी का बेटा मुल्क से बाहर जाएगा। पलवशा सख्ते में आ गई।
میں نے یہاں آنے سے پہلے شیر لالا اور چھوٹی مالکن کی باتیں سن لی تھی۔ پری نے نظریں چرا کر کہا، آواز میں شرمندگی تھی۔ لیکن خدا کی قسم، یہ گناہ میں نے تمہاری خاطر کیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے چوری سننے کی عادت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی پل کر بڑی ہوئی ہوں۔ پلوشا نے پری کا ہاتھ تھاما۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا پری، تم نے نمک کا حق ادا کیا۔ میں سمجھی کہ شاید اتنے عرصے بعد میرے باپ کو میری یاد آئی ہوگی، مگر میں بھول گئی تھی کہ وہ تو اپنی بیوی کے انگلی کے اشارے پر سوچتا ہے، تبھی تو اپنی دوسری بیوی کے بیٹے کی خاطر مجھے قربان کر ڈالا، پلٹ کر ایک دفعہ بھی نہ پوچھا کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ پری نے اسے گلے سے لگا لیا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بس تم انکار کر دینا کہ نہیں جانا۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھیں کہ باہر سے زرغام کے گرجنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکی۔ پلوشا اور پری آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلیں تو پلوشا ایک دم پردے کے پیچھے ہو گئی۔ صحن میں زرغام کھڑا تھا، سامنے حویلی کے 2 ملازم تھے جنہیں ہدایات دیتا وہ بولا، جا کر کہو پلوشا اب آفریدی کی بیوی ہے، اسے زبردستی لینے جو آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ ملازم فوری طور پر مڑ گئے۔ زرغام پلٹا اور رک گیا۔ پلوشا پردے کے پاس کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے زرغام کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ زرغام کے اندر کچھ تڑپا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ پری وہاں سے خاموشی سے کھسک گئی۔ دیکھو، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر نرم تھی۔ تمہارے والد آئے ہیں، اگر ملنا چاہتی ہو یا ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں قطعاً نہیں روکوں گا۔ پلوشا نے سر نہیں اٹھایا مگر آہستہ سے بولی، میں نہیں جانا چاہتی۔ زرغام ٹھٹکا، مگر کیوں؟ بخدا اس حویلی میں میرے ہوتے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں روکوں گا۔ میں جانتی ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ بس میرا دل نہیں کر رہا۔ زرغام نے اسے دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ الجھن ہوئی۔ اس نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، تم جانتی ہو ایک دشمن قبیلے کے مرد کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہو کہ اپنے گھر نہیں جانا۔ پلوشا نے ایک لمحے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹا، پر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ بس ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، ہاں میں جانتی ہوں، کیونکہ دشمن قبیلے کا یہ مرد اب میرا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شرما کر نظریں نیچی کر لی، گالوں پر لالی آ گئی۔ زرغام بس اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کتنی بار اس نے کہا تھا کہ اسے بیوی نہیں مانتا، کتنی بار اس نے دوری بنائی تھی، کتنی بار خود کو روکا تھا، پر یہ لڑکی اسے ہرا گئی۔ وہ اب کی بار خود کو روک نہیں پایا اور پلوشے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اس حویلی میں اس پر کوئی بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔